Hello and welcome, guys, and welcome to this live session. Please confirm if I'm audible and visible to all of you. Hello and welcome, guys. Hi, Zainab. Good to see you. Ujjal Ghosh, Prashant Sharma, Ayush Rai. Hello. Are you able to hear me? Please confirm in the chat box so that we can start today's session. Sir, why are you looking so serious today? Because today I'm going to discuss a very, very serious matter with you. Yes, very, very serious. This cannot be more serious than this. It is a very, very serious matter, and that's why I am in front of all of you. Good evening, Shakti. Good evening, Ria, Harsh, Pimpalkar, Zaid. Good evening, everyone, and welcome to this live session. So, guys, the serious matter which I'm going to discuss with all of you today is CMA is a professional examination where even qualifying in the very first attempt is a difficult task. Under this circumstance, when even qualification is so rare, the pass percentage is approximately 10 to 15%. In that situation, getting an all India rank is a different ball game altogether. It's something incredible. It's something which is absolutely proves that particular person is definitely a prodigy and has worked really hard towards the desired goals. But if the all India rank is in single digit, then you wonder, what did this person do so special that the rank is in one digit? And if the rank is in amongst top 3, which means that out of all the 1200 students who have qualified CMA examination, yes, June 2024 CMA examination final has been qualified only and only by 1200 students out of the thousands and thousands of students who have appeared in the examination. And in that scenario, in such a stringent result, getting an all India rank, and that too in top 3, getting yourself in the top 3 of the nation, it's a miracle. It's absolutely a miracle, and only a prodigy can do this. Only someone with a very strong nerve and a very strong gut can do this. I am absolutely sure about this fact that this particular guy is going to get amazing packages in the forthcoming campus, because it's not that the rank holders are made out of some other material or something like that, or they have really good brains or something like that, but they have the guts to think, to imagine the unimaginable. And that is the reason why today we are talking about, yes, CMA final, all India rank 2. All India rank 2. Yes, unbelievable. All India rank 2. Tahir is with all of us. Welcome, Tahir. Welcome to this live session. And yes, we still are not able to really digest and believe that an all India rank holder 2 is amongst all of us. Can you believe that you scored all India rank 2? Even I can't believe it right now. So I feel it's like a dream. Yes, it is like a dream. But how does it feel? I mean, all India rank, and that too in top 3, which means that out of the entire nation, you are amongst the top 3 students. What is that feeling? I think it's the grace of the God because top three में आना कोई मामूली काम नहीं है. So it's all about luck. चलो, हम्बल है बहुत ताहिर ने एकदम ह्यूमिलिटी के साथ उसने कह दिया इट्स ऑल अबाउट लक. बट गाइज, हम लोगों को पता है कि लक भी तभी काम करता है जब आप काम करते हो. तो डेफिनेटली ताहिर ने बहुत जबरदस्त काम किया होगा, और आज के इस लाइव सेशन में हम ये निकाल कर ही रहेंगे, निचोड़ कर ही रहेंगे ताहिर से कि ताहिर ने ऐसा क्या किया जो ऑल इंडिया रैंक आई. बट उससे पहले ताहिर, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था, सब लोगों का रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो मैं खुद शॉक हो गया था कि ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया है. देन जब मैंने पेरेंट्स को बताया, सो दे वर सो इमोशनल. और सारे मतलब I remember the lecture which you have taught, that CS in the lecture CAS 1,
you told your story that how what was your reaction, what was your parents' reaction. So the Yes. exactly the same I was feeling that day. Brilliant, brilliant. Do you want to share with the audience once? यस 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 सो मुझे कॉल आया और मुझे बोला गया कि आपको ऑल इंडिया रैंक 2 आया है. सो मैंने घर पे आके बताया सबको कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 आया है और सब लोग एक साथ ही थे हॉल में. सो कुछ वर्ड्स ही नहीं निकल रहे किसी के मुंह से. एवरीवन वाज आउट ऑफ वर्ड्स और इमोशनल हो गए, आंखों में पानी आ गया. तो यस. पता है ये ऐसा ऐसा जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है जब पेरेंट्स की आंखों में यस आंसू सर. आ रहे हैं, पानी आ रहा है और आपको खुशी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार आज तो पानी आने दो, आंसू आने दो. सो ब्रिलियंट 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 मोमेंट दैट यू एनकाउंटर्ड ताहिर. अमेजिंग, बहुत मजा आया. चलो अब यस मुद्दे आई पे आ फील जाएं. सो प्राउड. यस सर. Yes, you have made your parents proud, you have made your teachers proud. I mean, just see the amount of love which is being showered on you from the entire country. I can see your interview with all the faculty members. All the faculty members are so happy. मैं जिस भी फैकल्टी मेंबर से बात करता हूँ उन सबके मुंह पे तुम्हारा नाम है, सबके बारे में, सबके जहन में तुम्हारा जिक्र है. तो ये जो जिक्र होना, जहन में किसी के जिक्र होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो तुमने अचीव करी है. एंड इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट. और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा है यार. पैसे तो सबको कमाने हैं, जॉब तो सबको करनी है, बट ये जो AI2 वाला जो तुमने अपने ऊपर एक एक स्टैंप लगाया है ना, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे. Yes, sir. I'm so grateful for the love I'm getting, and I want to thank everyone. My family, first of all, my mentors. They were the one who taught me. So I was conceptually clear because of my mentors, because of you, sir, and all my friends who supported me. Even where I used to do articleship, they also used to support me, and they also used to teach me a lot. So I want to thank everyone who used to, be with me in my journey. So it's all Yes. about team effort. वेरी गुड. ग्रैटिट्यूड इज वन थिंग जो हम सबको रखना चाहिए. चलो अब आ जाते हैं मुद्दे पे. ठीक है भाई, बड़ा सीधी सी बात है. Yes. तुमको लाइव लाने का जो मकसद है वो थोड़ा सा स्वार्थ है हमारा, हम सबका स्वार्थ है. और स्वार्थ सिंपल सा ये है कि जैसे तुम AIR लाए हो, वैसे दिसंबर 2024 में इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर देने वाले हैं. वी वांट टू नो द स्ट्रैटेजी, वी वांट टू नो द मैजिक, वी वांट टू नो द सीक्रेट. तुमने ऐसा क्या किया, तुमने ऐसा पेपर में क्या लिख के आए कि तुमने AIR2 अटेन किया? डेफिनेटली सर. सो सीक्रेट मैं आपको रिवील कर देता हूँ. मे बी मैंने रिवील नहीं किया होगा अब तक. सो आई यूज टू मैनेज वन एक्सेल एंड आई यूज टू प्रिपेयर ऑल द टाइम टेबल इन दैट. सो उसमें मैं ओके. कैसे करता था, एक एक्सेल बना लिया मैंने. उसमें पहले तो ग्रॉस लेवल पे जैसे मंथली मेरे को कब खत्म करना है लेक्चर्स, वो मैंने लिख लिया कि ये मंथ तक मेरे लेक्चर्स खत्म हो जाना चाहिए. फिर मेरे ये मंथ में एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए. लास्ट मंथ में मेरा रिवीजन 3 और पेपर सॉल्विंग वो सब में ही होना चाहिए. सो ये ग्रॉस लेवल पे लिख लिया. देन व्हाट आई यूज्ड टू डू, एक्सेल में मैं डेली का डेली लिखता था मुझे क्या करना है आज. सो आई यूज्ड टू डिवाइड माय होल डे इन 4 सेशन. So in first session I used to take up law, and in next session I used to take up some practical subject. So ऐसा मैंने 4 डिवाइड किया और 2 दिन का या 3 दिन का मैक्सिमम लिखता था कि मुझे क्या करना है. और देन आई यूज्ड टू कंप्लीट द होल डे एंड आई यूज्ड टू मार्क इट एज ओके डन. सो doing this consistently, I think it is very good for me. It worked for me, and yeah, you have to be consistent and you have to organize the things which you are learning. So organizing is also very important. करेक्ट. सो प्लानिंग, तुम्हारा मतलब है प्लानिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करनी प्लान है. करो. Correct. हर चीज को प्लान करो, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से प्लान करो, आपके कितने दिन लगने वाले हैं और वो जो दिन लगने वाले हैं वो किस किस टॉपिक पे या किस किस चीज पे डेडिकेट होंगे, वो चीज प्रॉपर्ली प्लान होनी चाहिए आपके सामने. Yes. परफेक्ट. एंड व्हाट एल्स, सेकंड चीज क्या बताओगे तुम? पेपर सॉल्विंग. पेपर सॉल्विंग मैं बहुत करता था और मैंने जो बताया मैं एक्सेल मेंटेन करता था. सो लास्ट का जो मेरा सेशन होता था मे बी आफ्टर 7 to 10 3 घंटा होता है. सो उसमें मैं हर रोज पेपर सॉल्व करता था 3 months बिफोर द एग्जाम. सो 90 days था और हर रोज मैं एक पेपर सॉल्व करता था और उसको खुद चेक करता था कि मैं कितना पानी में हूँ. सो स्टार्टिंग में जब पेपर सॉल्व करता था तो मैं फेल हो जाता था क्योंकि वेरी टाइम, तो मुझे नहीं आते थे, 40 भी नहीं आते थे. तो मुझे लगता था कि यार बहुत मेहनत करना बाकी है अभी. सो खुद को इवैल्यूएट करो, खुद देखो आप
क्या चीज़ कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। सो उसे करते जाओ, पेपर सॉल्व करो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दूसरी चीज है टेस्ट सीरीज, है ना? जो टेस्ट टेस्ट सीरीज है सीरीज वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कहीं भी टेस्ट सीरीज मिल रही है तुम्हें टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए, ताकि तुम सेल्फ इवेल्युएट कर सको व्हाट काइंड ऑफ लेवल आर यू एट। परफेक्ट। यस। तीसरी चीज? तो तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस और खुद में फेथ होना। एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं हमें पता सब होता है, लेकिन हम बस डगमगा जाते हैं कि पेपर में क्या आएगा और मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। और क्वेश्चन देख के मे बी क्वेश्चन ऐसा बनता है, क्वेश्चन पेपर आपको 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि बहुत खतरनाक दे दिया है, और वो ही हाँ देख के हम डर जाते हैं और बाकी के 8 में भी हाँ। खराब करके आ जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म कि क्वेश्चन पेपर हम जब देखें तो पहले तो ये देखें कि हमें सॉल्व कौन सा करना है, और जो ज़्यादा टफ लग रहा है उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए और दूसरा अटेम्प्ट हम्म करो। तो कॉन्फिडेंस हम्म से पेपर दो, तो वही है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके ओके। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया आपने सिलेक्टिव स्टडी की थी या एकदम 100% सिलेबस कवर किया था? वेरी गुड क्वेश्चन। 100% सिलेबस कवर किया था। तो सारे चैप्टर्स को फुली उतना इंपॉर्टेंस दिया था या कुछ एबीसी एनालिसिस टाइप का भी यूज किया था? एबीसी मैंने यूज़ नहीं किया था एक्चुअली, मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स को, सारे ही चैप्टर्स को इक्वल लेवल का मैंने वो किया था। बट मैं ये बोलूँगा कि ग्रुप 3 को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि ग्रुप 3 में जो सब्जेक्ट्स है वो वास्ट है, और ग्रुप 4 एक करेक्ट बार हो जाता है हमारा पढ़ के, बट ग्रुप 3 बहुत वास्ट है और वो पढ़ने के बाद भी रिटेन नहीं होता है, वो भूल जाते हैं बार बार। सो उसको बार बार करेक्ट रिवाइज करो। करेक्ट। परफेक्ट। एक क्वेश्चन आ रहा है, स्टडी मटेरियल जो हमारे इंस्टीट्यूट का है, क्या आपने उससे पढ़ा था या कोई और सोर्स से पढ़ा था? ओके, स्टडी मटेरियल तो मैंने मतलब लास्ट में बस एमसीक्यू देखने के लिए लिया था स्टडी मटेरियल, और जो भी मैंने क्लासेस लिए थे जो फैकल्टी से, उनकी जो बुक आती है वही उसे ही पढ़ता था मैं। हम्म अच्छा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट या एक दिन में 4 सब्जेक्ट प्रिपरेशन करते हुए? एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, चौथा सेशन जो होता था वो मेरा पेपर सॉल्विंग का होता था। ओके परफेक्ट। लास्ट के 8 डेज में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, वो सबसे टफ है। बहुत इंपॉर्टेंट, यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब आप लेक्चर देख रहे हम्म हो आपको हम्म समरी नोट्स प्रिपेयर करना ही है। आप जैसे क्लास हम्म में हमें प्रिपेयर करवाते थे समरी नोट्स, आप बोलते थे कि लिखो, आपको ये एक दिन पहले काम आएगा, और ऑब्वियसली वो काम हाँ आता ही है। सो हम्म समरी नोट्स आप जब लेक्चर देखते हो आप प्रिपेयर कर लो, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट वो टाइम वेस्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है समरी नोट्स, और वो समरी नोट्स को बार बार रिवाइज करो। एक बार आपने लिख लिया, आपका एक बार रिविजन हो गया, सेकेंड टाइम आप उसको फिर से एक बार रिवाइज करो, देन आप बुक ओपन करो, और थर्ड टाइम आप एग्जाम के पहले जब ओपन करोगे तो आपको खुद याद आते रहेगा चीज़ें। करेक्ट। परफेक्ट। तो यस गाइज, लास्ट के 8 डेज मैनेज करने का जो तरीका है वो है कि अभी से ही आप 8 डेज के लिए तैयारी करो, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें मार्क करके रखो कि ये एरियाज हैं जो आपकी भी वीकनेस हो सकती है, इन्हें तो मैं एंड के 8 डेज में लूंगा ही लूंगा। वेरी गुड, सुपर। अच्छा एक क्वेश्चन, आर्टिकल्स के साथ साथ आपने पढ़ाई कैसे मैनेज करी? ये क्वेश्चन सब पूछते हैं, तो आर्टिकलशिप बहुत मतलब ऐसा लगता है कि घर जाने के बाद जब आप निकलते हो ऑफिस से और घर जाते हो तो मन जरा भी नहीं करता है कि नहीं और यार क्या। बस लेट जाए और थोड़ा हाँ, थोड़ा आराम करें। रेस्ट बट रेस्ट ऐसा करें। है कि हमें 6 महीना 8 महीना खुद को रेस्ट ना दे के थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके करना है। तो आर्टिकलशिप के टाइम पे मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था। सो घर पे जब आता था तो लेक्चर्स देखता था मोस्टली, तभी तो मेरा रिवीजन चालू नहीं हुआ था। तो जब मैंने लीव्स लिया हम्म था तब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। सो ड्यूरिंग ओके माई आर्टिकलशिप आई यूज्ड टू सी लेक्चर्स एंड आई यूज्ड टू प्रिपेयर समरी नोट्स, दैट्स ऑल। परफेक्ट, ठीक है। तो आर्टिकलशिप के दौरान आपको बस ये करना है, अपना कोर्स पूरा रखो, नोट्स और चार्ट्स जो टीचर्स बनवा रहे हैं वो पूरे रखो, ताकि आर्टिकलशिप के बाद जब आपको ऑफ मिले उस ऑफ में आप प्योर 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 रिवीजन करो। आप लेक्चर ढूंढने के या नोट्स बनाने के या क्वेश्चंस लिखने के टेंशन में ना रहो। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, सीएफआर का एक स्पेशल क्वेश्चन आया और ये हर बच्चा पूछता है, सीएफआर का प्रिपरेशन का तरीका क्या है, क्योंकि द कोर्स इज वास्ट। बहुत वास्ट है सी एफ आर। सो सी एफ यस। आर में मैं ऐसा करता था कि जो मुझे इंपॉर्टेंट सम्स लगते थे ना मैं उसको सॉल्व करता था। पहले तो लेक्चर्स देख के समझ में आ जाता था, कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाती थी। बट एक्चुअली जब आप सॉल्व नहीं करोगे ना तो आपको नहीं आएगा। तो वो उसमें भी आप सब नहीं सॉल्व कर सकते एक्चुअली, देखा है तो सी एफ आर बहुत वास्ट है, और मैं सब करने बैठूंगा तो नहीं होगा मुझसे।
सो आप सिलेक्ट करो कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आप करोगे तो आपके आगे के 3 क्वेश्चन भी नहीं भी करोगे तो चलेगा। सो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े होते हैं थोड़े, बट उसके उसके साथ साथ हमारा दूसरा भी क्लियर हो जाता है। सो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और ऑब्वियसली वो मैच नहीं होता है, वो टैली नहीं होता है, बट आप जो प्रैक्टिस करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो प्रैक्टिस तो करना ही करेक्ट, चाहिए, टैली हो या ना हो। करेक्ट। प्रैक्टिस इज द की इन ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एग्जाम्स। परफेक्ट। एंड बस लास्ट क्वेश्चन, थ्योरी कैसे आपने अटेम्प्ट करा? थ्योरी का आपने कैसे मतलब पढ़ा, याद कैसे थियरी रखा? भी थियरी के लिए भी सेम वही चीज़ बोलूँगा, समरी नोट्स प्रिपेयर करो और वो समरी हम्म नोट्स याद करो। बट हम्म आपको जो बुक मिलती है आप उसको रीड भी करो। सो जब आप हाँ समरी नोट्स याद तो कर लोगे, अभी आपको वर्ड्स पता है, पॉइंटर्स पता है, बट आपको सेंटेंस नहीं आएगा लिखने कि अब मैं स्टार्ट कैसे हाँ करूँ। सो समरी हाँ नोट्स याद कर लो पूरा, और गो थ्रू करते जाओ बुक एक बार दो बार कि एक्चुअल में कैसा हाँ जा रहा है, फ्रेम कैसे करना है सेंटेंस लॉ की लैंग्वेज हाँ में, क्योंकि आप ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो। थोड़ा बहुत लॉ का लैंग्वेज आपको लिखना ही पड़ेगा, जो कीवर्ड्स होते हैं वो यूज करना ही पड़ेगा। सो वो सब प्रिपेयर करके जाओ। परफेक्ट, परफेक्ट। सो यस गाइज, yes, Saurdeep, you have almost clarified all the most important point जो कि हमारे चैट बॉक्स में आया। और जी हाँ, कोई AIR लाना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा खास करना पड़ेगा, बस ये है जो करना है ढंग से करना है, उसे कंसिस्टेंटली करना है। तो ताहिर आज अगर आप सबके सामने यहाँ पर बैठा है, वो सिर्फ इसलिए बैठा है, उसने प्लानिंग सिर्फ एक टीचर की जोश भरी वीडियो देख के, ठीक है, कि मैं भी एक जोश भरी वीडियो बनाता हूँ, जोश भरी वीडियो बना दी, प्लानिंग का चार्ट बना लिया और एक हफ्ते में फुस हो गया, एक हफ्ते में सारी प्लानिंग खत्म हो गई। ठीक है, ये नहीं करना। कंसिस्टेंटली प्लानिंग करनी है, कंसिस्टेंटली उसे एग्जीक्यूट करना। प्लान्स एक बार में सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये गारंटी की बात है। ताहिर के भी नहीं होते होंगे, कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी जो वो अगले हफ्ते पूरी करता होगा। आपको कंसिस्टेंटली बस अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने कंसिस्टेंटली 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लिया और कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ली, you can definitely share the screen with me, just like Tahir is sharing the screen with me in the upcoming attempt. So Tahir, on that very note, all the very best for your campus now. अब जो आंखें हमारी गड़ी हुई हैं वो गड़ी हुई हैं हमारे ताहिर भैया कैंपस प्लेसमेंट में। कितनी अच्छी पैकेज लेके आते हैं, कितना अच्छा प्रोफाइल लेके आते हैं, किस बढ़िया कंपनी में, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिक्रूट होते हैं, कौन कौन से उन्हें जॉब ऑफर्स आते हैं कैंपस के अंदर। हम सबकी अब निगाहें एकटक होके उस चीज को इंतजार कर रही हैं, देख रही हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। Now your academic life to a very large extent has now come to a standstill, now come to a very happy ending. Now your professional life begins as CMA Tahir, and now you are a professional. So first of all, congratulations, and secondly, all the very best for your campus. थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। So yes guys, this was Tahir, and yes, हम सब ताहिर को विश करते हैं कि एक जबरदस्त सा पैकेज, जबरदस्ती कंपनी awaits him, and of course he deserves it because he is none other than All India rank holder 2 of CMA final June 2024 attempt. Okay Tahir, bye bye, see you very soon. After you've got the placement, we'll see you once again, we'll disturb you once again. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So guys, this was Tahir for all of you. The humility with which he was speaking, you know, the down to earth attitude, the simplicity with which he was explaining you stuff. This is amply a proof that you can also get an all India rank. Just the right approach, right direction, right study pattern, and rank can be all yours. And yes, you can share this screen with me in December 2024 attempt, all the subsequent attempts. Yes, you'll be sitting with me sharing this screen and explaining how did you get all India rank. तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक चाहिए, जरा कमेंट सेक्शन में टाइप करना ऑल इंडिया रैंक, AIR। जितने भी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक चाहिए, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल इंडिया रैंक। और जो भी ऑल इंडिया रैंक चाहिए कमेंट करके चले जाओ। नो मैटर, नो वंडर्स, यूनिवर्स हो सकता है इस समय ये चीज देख रही हो और ये चीज आप सबके लिए मैनिफेस्ट कर दे, आप सबके लिए ऑल इंडिया रैंक मैनिफेस्ट कर दे। यू नेवर नो इट, एंड आई यू नो यू, आई एम अ firm believer of manifestation. Manifestation works, it's here for real, and you are definitely going to benefit it out of it. AIR1, very good. Pooja Bele, Sai Luthra, Moon Soni, Rupa Malla, Gauri Kharadkar,
Sai Luthra, Srijita, brilliant guys. So yes, I'll be back with more such achievers, more such winners who have made it big in June 2024 attempt to motivate all of you. Till that time, all the very best and happy studying. Bye bye. See you in the next session.